ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ डायरेक्टर इत्थों दी कोल भी लंघे आ, उन्होंने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। इंडिया में आज सब जगह बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पहले लड़कियों को लाते हैं, उनको बॉन्ड कर देते हैं, ना उनको कहीं जाने के लिए लायक छोड़ते हैं और अब अगर जॉब देने से भी हमें ये मना कर रहे हैं। मान लो जे तुहाडी मंग जिहड़ी तुसीं कर रहे हो नहीं मनदा प्रशासन, की प्लान आगे? सर अभी तो हम लड़ने का ही प्लान है, लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट का ही। किस रूप से होगा प्रोटेस्ट? सर ऐसे ही हम लोग जिस भी तरह से हम जैसे आज बैठे हैं, अगर हमें कंटिन्यू भी करना पड़े, वीकली करना पड़े, एक पर्टिकुलर इंटरवल में करना पड़े तो हम करेंगे। नी फुल्लां वर्गियो कुड़ियो नी चोबां जर दियो कुड़ियो करो कोई जान दा हिला नी तिल तिल मर दियो कुड़ियो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करम सिखा तुहाडा स्वागत करदा। दोस्तों पंजाब ते चंडीगढ़ दी सड़कों ते आए दिन नौजवान धरने मारदे आ, नारे मारदे आ। ਲੱਖਾਂ रुपए पढ़ाई ते खर्च करके और अपनी जिंदगी दे 15 ਤੋਂ 20 साल कॉलेजां दे विच लगा के ਜਦੋਂ नौकरी लैण लई ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जवाब मिलदा नहीं। और इसे करके पंजाब ਦੀਆਂ सड़कों ਤੇ आए दिन ਜਿਹੜੇ नौजवान ने धरने मार रहे आ। हालांकि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ न्यू लिबरल पॉलिसी जदों दी लागू हुई है, जदों तो नवीं आर्थिक नीतियां लागू हुई ने उदों तो सारे सरकारी अदारे च नौकरियां खत्म दे समान ने, नवीं भर्तियां नहीं हो रही। अज मसला आया चंडीगढ़ पीजीआई दे विच, वो कुड़ियां जिहड़ियां इत्थे नर्सिंग करदियां ने, बॉन्ड भी इन्हां तों भरवाए गए आ कि नौकरी दित्ती जाऊगी पीजीआई दे विच ही। इन्हां ने एंट्रेंस टेस्ट क्लीयर किया, ਲੱਖਾਂ रुपए पढ़ाई ते खर्च किए, अज धरना मार के बैठे ने। आपां गल करदे हां कि की मजबूरी बनी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की नाम है जी अपना? मेरा नाम तरनप्रीत है ते मैं नर्सिंग कॉलेज तो ही पास आउट स्टूडेंट है। पिछले साल साडी डिग्री कंप्लीट हो गई सी, नवंबर विच रिजल्ट आया। अच्छा, की वजह रही है भी इन्ने स्टूडेंट है जिहड़े अज धरना मार के बैठे हैं? जिहड़ी संस्था ने उन्होंने पढ़ाया उस संस्था के खिलाफ धरना ला के बैठे हैं? सर एक्चुअली 2018 ਚ ਜਦ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, 15 ਸੀਟਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਫ देयर विल बी नीड फॉर स्टाफ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹ ਲਾਸਟ 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 6 ਮੰਥ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮੰਥਸ तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਮਐਸ ਆਫਿਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਫੈਬਰੂਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਡ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 6 ਮੰਥਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 30-40 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬੌਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈ
ਪੀਜੀਆਈ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 12 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇयर ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ सलोनी ਕਿਹੜੀ ਸਮੈਸਟਰ ਚ सर मैं पास आउट बैच हम सारे पास आउट बैच से हैं जो भी जॉब के लिए लाइंड अप है सर यहाँ पे ये अब जैसे एमबीबीएस कहीं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी होती है उनकी भी पूरी 5 साल क्लिनिकल ड्यूटी नहीं लगती है हर रोज उनकी भी लगेगी तो साल में 2 महीना लगेगी तो सिर्फ क्लिनिकल ड्यूटी होती है उस टाइम कोई क्लासेस नहीं होती हम लोगों ने 4 सालों से मॉर्निंग में हम 8 to 1 क्लिनिकल जाते थे 2 to 5 हम लोग क्लासेस लगाते थे और जब हम 4th ईयर में हुए तो हमारी 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगना शुरू हुई मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट्स और हमने इवन डे शिफ्ट्स भी 12-12 घंटे की करी हैं बीच में हम सिर्फ 1 to 2 हमें ब्रेक मिलता था और फिर हम दोबारा आते थे मतलब हमने एक टाइप से जो स्टाफ 6 घंटे की एक दिन में शिफ्ट करता है हमने एक दिन में डबल शिफ्ट्स करी है और सिर्फ दूसरी बात ये कि नाइट ड्यूटी भी हमारी लगाई सब कुछ हमने किया सिर्फ ये कह के कि आपको ठीक है जॉब मिल रही है तो हर चीज़ हमने यही करके करी भी है सही भी है बहुत सारी चीज़ें कि सिर्फ जॉब मिल रही है तो चुप करके कर ली पर अब सर जो पानी है वो सर के ऊपर से जा चुका है इन्होंने 6 महीने से हमें सिर्फ ये चीज़ बोली कि आपकी फाइल प्रोसेस में है हम दे रहे हैं आज हो जाएगा अगले हफ्ते आ जाएगा फेब के एंड में आ जाएगा मार्च में आ जाएगा फिर इन्होंने कहा हमारी बस कुछ मीटिंग्स हैं कुछ चीज़ें हैं जो अप्रूव होनी है और उसके बाद जो है आपको जो है हम इशू कर देंगे और इवन इन्होंने अप्रैल एंड में तो ये भी कह दिया था कि बस 1-2 दिन में आपका जो लेटर है वो इशू हो जाएगा लेकिन जब हमारी पेशेंट्स ने जवाब दे दिया हम इनसे 6 महीनों से जवाब मांग रहे हैं और ऑलमोस्ट ये 9th मंथ लग गया तो अप्रैल में हमने 3rd अप्रैल को तब हमने कैट में जो है केस फाइल कर दिया इनसे जवाब लेने के लिए कि हमें क्लियर कट जो है आपका आंसर चाहिए और जिसकी भी शुरू की 5 हियरिंग्स में इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया कोर्ट में इनके पास कोर्ट में एक ही आंसर था कि अभी कोई रिस्पांस नहीं है कोई जवाब नहीं है एंड 15 मई को जो हियरिंग हुई थी उसके बाद जो है कोर्ट ने कैट ने इनको एक नोटिस भेजा था कि एनेक्स्टर 7 के अंडर जिसमें इन्होंने 2021 वाले बैच को रिक्रूट किया है अगर ये चाहें तो 22 मई एक और हियरिंग की डेट मिली थी कि उससे पहले जो है इन बच्चों को आप रिक्रूट कर सकते हो बिल्कुल डायरेक्टर पे छोड़ दिया था एंड इवन 16 मई को ही हियरिंग के अगले दिन जो थे काफ़ी बच्चे डायरेक्टर से मिलने गए थे एंड स्टिल डायरेक्टर सेड के मतलब जॉब जो है हम आपको देंगे आप तो हमारे स्टूडेंट्स हो हमारी मैन पावर है हम आपको नहीं जाने देंगे है ना एंड पूरे हफ्ता इन्होंने निकाल दिया ये करके और 22 को हियरिंग थी अभी मंडे को तो इन्होंने क्या किया कि 20 मई को सैटरडे को इन्होंने शाम के टाइम वो स्पीकिंग ऑर्डर निकाल दिया और जब वो 22 को भी इन्होंने हियरिंग में प्रेजेंट करा तो जज के बेंचेस ने भी यही कहा कि जो स्पीकिंग ऑर्डर है आपका वो आप अपने में ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है और अगर जो ये रिक्रूटिंग रूल्स चेंज की बात कर रहे हैं तो वो 19 में हुए हैं और हम 18 में आए हैं 2019 में चेंज हुए हैं और हम 2018 में बॉन्ड फिल करके आए हैं तो वो हमारे ऊपर जो है अप्लाई नहीं हो सकता और 2019 के बाद भी जितने नए बैचेस आए हैं उनको इन्होंने रिक्रूट भी करा है जॉब के लिए और जो कॉलेज में आए हैं उनको इन्होंने बॉन्ड भी फिल करवाया है अगर इनके रूल्स चेंज थे तो ना तो इनको फिर बॉन्ड फिल करवाना चाहिए था ना हमारे सीनियर्स को जॉब ਤੁਹਾਡੇ बैच ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ क्यों हो रहा है वजह की लगती है वही सर उसी के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ सर हम अब अंदर की बात है हम नहीं कि हम क्या बोल सकते हैं हम तो जाते थे ऑफिस पूछने और सर ये होता है ना कि ये समझ लेते हैं कि बच्चे हैं लड़कियां हैं खासकर लड़कियां करके ये डोमिनेट कर देते हैं ढंग से जवाब भी नहीं देते लड़के होते तो इनको पता है कि वो थोड़े अग्रेसिव भी हो जाते कुछ बोल देते लड़कियां क्या ही बोलेंगी ये सबसे बड़ी चीज है और दूसरी तरफ हम जहाँ इंडिया में आज सब जगह बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पहले लड़कियों को लाते हैं उनको बॉन्ड कर देते हैं ना उनको कहीं जाने के लिए लायक छोड़ते हैं और अब अगर जॉब देने से भी हमें ये मना कर रहे हैं अब ये बिल्कुल ही एंड में यू टर्न मार रहे हैं 10-10 घंटे ਤੁਸੀਂ जॉब करते रहे हो ਇੱਥੇ 12 घंटे काम करते हैं कोई स्टाइपेंड कोई पैसे मिले जिसमें पीएचडी स्कॉलरशिप सर मिलती है जैसे हमारा जैसे बॉन्ड होता है ना जब हम फिल करके आते हैं तो उस टाइम ये था कि पूरे 4 साल हमें पर मंथ 500 रुपीज मिलेगा तो वो हाँ पर मंथ वो उस बॉन्ड में था लेकिन लास्ट ईयर मोबाइल रिचार्ज भी नहीं होता हाँ जी सर वो भी इंक्रीज हाँ फिर सर जब लास्ट ईयर 14 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट से एक ऑर्डर पास हुआ था जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं एम्स हो गया पीजीआई कि जो इंटर्नशिप वाला जो 3.5 साल वाला है 500 वो तो 500 ही था पर इंटर्नशिप जब बच्चे करेंगे तो 500 से वो जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो रेज होके हो जाएगा 13,500
पर पर्सन। तो वो जो ऑर्डर था वो इमीडिएट इफेक्ट लिख के आया था लास्ट ईयर जुलाई में 2022 में 14th को, और हमारे तब 2 महीने रहते थे इंटर्नशिप के, तो उस हिसाब से हमारे 2 महीने के एक बच्चे के हो गए 27,000 रुपीज, और अगर 95 का बैच था तो वो सारा होता है 25,65,000 रुपीज। तो वो अभी तक हमारा प्रोसेस नहीं किया गया है, और जो पैसे भी नहीं मिले। हाँ, पैसे भी वो नहीं मिले प्रोसेस हमें। नहीं हुआ है हमारे 2 मंथ्स का। और जो अभी के करंट इंटर्न्स हैं जिनको 3 मंथ्स हो गए इंटर्नशिप में, तो उनका भी 3 मंथ्स का वही 13,500 जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। हमारा ही नहीं हुआ पिछले साल का, तो उनका भी नहीं हुआ। कितने के बच्चे टोटल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? सर जो पास आउट बैच है वो 95 का हमारा बैच है, जो कि ऑलरेडी रिस्क पे है। और उसके अलावा सर 1st to 4 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ भी इंक्लूडेड है। 300-400 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ? सर अभी तो हम लड़ने का ही प्लान है, लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट का ही। किस रूप से होगा प्रोटेस्ट? सर ऐसे ही हम लोग जिस भी तरह से हम जैसे आज बैठे हैं, अगर हमें कंटिन्यू भी करना पड़े, वीकली करना पड़े, एक पर्टिकुलर इंटरवल में करना पड़े, तो हम करेंगे। क्योंकि सर अगर देखो हमारी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी मिली है कोर्ट से, वो मिली है हमें 6 जुलाई को, और उसमें भी हमें पक्का पता नहीं है कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा, आगे फिर डेट मिल जाएगी। हमारा तो ऑलमोस्ट 1 साल खराब हो गया, तो अब हम 6 जुलाई का वेट तो कर ही सकते हैं, पर साथ के साथ हमें ये भी करना है क्योंकि कल हमारा बॉन्ड पीरियड जो है वो खत्म हो रहा है। और सर ये जेन्युइन है, हमारा हक है। आज तक ये हो रहा है, हमने नहीं इनको बोला था एडमिशन के टाइम पे। हम तो बच्चे होते हैं, 18 इयर्स में सब यहाँ आते हैं, तो हम तो बच्चे थे। बॉन्ड की कॉल इनकी थी, तो अब ये कैसे बोल सकते हैं कि बॉन्ड वैलिड नहीं है, या हम नहीं मानते बॉन्ड को, तो हम नहीं देंगे। ये तुम्हारी ही कॉल थी, तो अब तुम कैसे पलट सकते हो? ये हमारा जेन्युइन हक है, इसमें हमारा कोई गलत नहीं है। इसके लिए हमें जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़ी हम कंटिन्यू करेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-4 5-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੌਂਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ।